let's start with the discussion of yesterday's test. Define ignition temperature of a fuel and what type of process is combustion. Yes, ignition temperature. Ansh, what is ignition temperature beta? हाँ जी बेटा, ignition temperature क्या होता है? So it is the minimum temperature at which the substance it undergoes the process of combustion. ठीक है, तो वो कम से कम कितना टेम्परेचर उस सब्सटेंस को चाहिए ताकि वो बर्न होना शुरू हो. That is the ignition temperature. And what type of process is combustion process? Exothermic. ठीक है, उस दिन भी मैंने करवाया था. Exothermic का मतलब क्या है? That heat is released in this process. Okay, so this is a type of exothermic process. Coming to the second question, you have to define combustion and essential conditions for the combustion. Combustion नहीं आता? Arman, what is combustion? What is combustion, beta? Very good. So combustion is defined as the burning of any substance in the presence of heat, and that substance is going to give you in the presence of oxygen, and that substance is going to give you heat, light, and some of the byproducts. Okay. Coming to the next is necessary conditions. Bolo Akul. Right. So you must remember the triangle. Okay, combustion process के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, एंड द थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो हमने ये ट्रायंगल लर्न करना. ओके, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम शोइंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द फ्लेम. तो कल भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था जब हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे. ठीक है, तो वी आर हैविंग 3 zones ऑफ द फ्लेम, luminous one, non-luminous and the dark zone, and sometimes we also obtain blue zone. ओके, तो ल्यूमिनस कौन सा जोन है? इनकम्प्लीट कंबशन का. नॉन ल्यूमिनस कंप्लीट कंबशन. ओके, एंड दिस इज द हॉटेस्ट वन. आउटर मोस्ट पार्ट है, हॉटेस्ट है, दैट इज ब्लू इन कलर. ओके, एंड गोल्ड्स में जो है वो कौन सा पार्ट यूज करते हैं? आउटर मोस्ट, दैट मीन्स नॉन ल्यूमिनस. ओके, so which region of the flame has highest temperature? Outermost. That is the most hottest part that burns with the complete combustion. Okay, that burns with the complete oxygen. Okay, you have to tabulate the differences between rapid, spontaneous and explosive combustion. हाँ जी अकुल बोलो. Very good. So rapid means the substance basically it burns very very quickly. ठीक है, तो that means उनका ignition temperature जो है वो room temperature से थोड़ा सा ज्यादा है कि अगर आप उसको थोड़ी सी heat supply करोगे तो जो substance है वो burn कर जाएगी. That means paper हो गया. ठीक है, paper it burns very rapidly. The second one is explosive. Explosion होता है. ठीक है, तो explosion किसके केस में होता है? क्रैकर्स हैं, जैसे हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी देते हैं आप. Okay, that comes under the category of explosive combustion. हाँ, बॉम्ब भी explosive combustions में आते हैं. ठीक है, तो explosion में आपके पास साउंड भी जो है वो आती है and a lot of amount of heat energy is generated. बहुत ज्यादा heat energy generate होती है. Okay, the third one is spontaneous. Spontaneous का मतलब क्या होता है? On their own और अपने आप. Okay, so spontaneous का मतलब क्या होता है? On their own और अपने आप, जो चीजें अपने आप burn कर जाती हैं. Okay, so the example is forest fires और dry leaves जो हैं वो spontaneous combustion में जाते हैं. एक मैंने आपको white phosphorus भी बताया था. White phosphorus is also undergo rapid combustion, spontaneous combustion. ठीक है, so with this we have discussed the test. Any doubt बेटा? ठीक है, okay, so let's start with the next chapter now, the friction.
सो व्हेन वी डिड द फोर्स एंड द प्रेशर चैप्टर, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हिंट थी कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, तो बैलेंस फोर्सेस की कैटेगरी में कौन सी आती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस की कैटेगरी में कौन सी आती है, ठीक है। तो उसमें ही हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए सबसे पहले हम कुछ इवेंट्स स्टडी करते हैं, कुछ एक्टिविटी स्टडी करते हैं। Okay, so firstly, list some of the activities in which you think that frictional forces they are acting. Just raise your hands. कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताओ जिनको लगता है देख के कि उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। हरमन? ओके, स्टॉपिंग ऑफ द रोलिंग बॉल। तो जो आपकी बॉल है जो रोल कर रही है वो अल्टीमेटली क्या कर जाती है, स्टॉप कर जाती है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। ऑन पुलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, तो जब आप हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो आपको लगता है ना कि वो ऑब्जेक्ट आपसे खींचा नहीं जा रहा, राइट। सो देयर इज सम रेजिस्टेंस दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग इट। लास्ट, पंचिंग बैग, उसमें क्या होगा, पंचिंग का बैग, आप टू पंच अ बैग, उसमें कौन सी फोर्स आएगी बेटा, वो तो आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, उसमें थोड़ी ना कोई फोर्स आएगी। हाँ जी, और हरीश? साइकिलिंग, स्टॉपिंग ऑफ अ साइकिल, स्टॉपिंग ऑफ अ साइकिल, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, हाँ जी। अकुल? moving car, it stops down on applying brake. हाँ जी, next. Slipping, when you slip over something like slipping over banana peel, होता ना ऐसे। Okay, writing, reading, वो सारी हम sorry writing on the board, that is also due to the friction। और हाँ जी, और जो आपका फैन स्टॉप हो जाता है, this is also due to the frictional force। Okay, so these are actually some of the forces in which we can state that a resistance force is there। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे मोशन को क्या कर रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, ठीक है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, रोकना किसी को। दैट मीन्स द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो उस चीज के ऊपर, ये हमेशा याद रखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगी और इसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होगी कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसने स्टॉप करना है। ओके, सो इट्स टेंडेंसी इज टू स्टॉप दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, so it is the resistance, you can write down, it is the resistance of motion experienced by the two surfaces, the resistance of motion experienced by the two surfaces in contact, two surfaces in contact. It is the resistance of motion experienced by the two surfaces in contact. तो पहली कंडीशन मैंने आपको बोल दिया है कि ये हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किन पे लगती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब दूसरी चीज क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है that should be in contact with some of the other object
on which the frictional forces will be acting. ठीक है, तो जो भी आपका फ्रिक्शनेटिंग एजेंट है, फ्रिक्शनेटिंग एजेंट मींस जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है वो उसके साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल पहले में हम ले रहे हैं स्टॉपिंग ऑफ अ रोलिंग बॉल, तो बॉल जो है वो कहाँ पर रोल कर रही है, ग्राउंड पे, तो दैट मींस ग्राउंड के साथ जो बॉल है दैट इज इन कांटेक्ट. पुलिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को मैं खींच रही हूँ, पुल कर रही हूँ, दैट ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन टच विद द ग्राउंड. ठीक है, तो दैट मींस जो सेकंड कंडीशन है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती है, प्लस व्हेनेवर द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट. तो जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी तभी फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं. ओके, ओनली देन द फ्रिक्शनल फोर्सेस दे विल बी एक्टिंग ऑन ईच अदर टू स्टॉप द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसके मोशन को क्या करने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी. ओके, यस, इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो इट ऑलवेज opposes the motion of object. क्लियर? तो ये हमेशा ही जो उस ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी. फॉर एग्जाम्पल, if I am going to pull a heavy box, ठीक है, मेरे पास ये एक हैवी बॉक्स है और मैं इसको पुल कर रही हूँ, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. दैट मीन्स मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचना है. आई एम पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स मैं किस तरफ फोर्स लगा रही हूँ, इस तरफ फोर्स लगा रही हूँ. ठीक है, बट इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट, ऑन ऑपोजिट साइड. ऑन दिस साइड, ओके, ऑन दिस साइड the frictional force will act. On this side the frictional force will act. ठीक है, तो नॉर्मली हम जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, और जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. क्लियर हो गया ये? तो अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ एक्ट कर जाएगी. ओके, क्लियर, राइट? So this is the concept of friction. तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कब अपना रोल प्ले करती है, जब बॉडी मूव कर रही होती है and when the two objects they are in contact with each other then it comes into play. ठीक है, तभी अपना रोल प्ले करती है. और ये क्या करती है, ये हमेशा मोशन, बॉडी के मोशन को क्या करती है, अपोज. इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. ओके, क्लियर है? नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, whenever write down the causes of friction. Next write down the causes of friction. अब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट क्यों करती है? What is the need of acting this force, right? So the next question is causes of friction. So it stops the moving object, but how it stops the moving object? मोशन तो अपोज करती है, बट रोल प्ले कहाँ करती है, मतलब कैसे ओरिजिनेट होती है? What is the cause of arising of this friction? When the object moves over the rough surface. See, हमने पहले ही बात की है that the forces they come into play when the two objects are in contact. ठीक है, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं तभी ये फोर्स जो है वो प्ले करती है. अब सपोज मेरे पास दो तरह की सर्फेसेस हैं. वन इज द स्मूथ सरफेस. ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ये. एंड वन इज द रफ सरफेस. तो रफ सरफेस में हमेशा कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, लाइक दिस, ऐसे होती है. ठीक है, rough surface is actually having some of the irregularities present in it that are also present in the smooth surface. वो smooth surface में भी होती हैं, but smooth surface में इतनी ज्यादा नहीं होती हैं. Like for example, if you take
मिरर, मिरर के ऊपर अगर आप कोई चीज स्लाइड कराओगे तो बहुत इजीली स्लाइड हो जाती है ना उसके। हाँ ठीक है, तो स्मूथ सरफेस के ऊपर जब आप कोई भी चीज स्लाइड करवाते हो बहुत इजीली स्लाइड हो जाती है। बट यही अगर कोई रफ सरफेस है, राइट, लाइक फ्लोर है, दैट इज एक्चुअली द रफ सरफेस। अगर बहुत ज्यादा वो स्मूथ नहीं है फ्लोर, आपका बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस नहीं है, जैसे यही ले लो, दिस इज नॉट एक्चुअली द स्मूथ वन, ठीक है, तो ये रफ फ्लोर है आपका, रफ सरफेस है। और अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज स्लाइड करने की कोशिश करूंगी तो आई विल बी हैविंग मोर फोर्स टू अप्लाई, ठीक है, मुझे उसके ऊपर ज्यादा फोर्स क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। सो द फ्रिक्शनल फोर्स इट कम्स इनटू प्ले due to the irregularities that are present on the surfaces. Okay, so frictional force जो है वो क्यों arise करती है, it arises due to presence of irregularities on the surfaces. तो जो आपकी सर्फेसेस होती हैं उनके ऊपर उनके नीचे क्या होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। अब ये इरेगुलरिटीज क्या करती हैं, अब ये इरेगुलरिटीज क्या करती हैं, अब जैसे सपोज ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट, मैं क्या कहती हूँ कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट तभी ये फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, इफ आई फॉर्म द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लाइक दिस आई एम फॉर्मिंग, सो व्हाट विल हैपन, हाँ जी व्हाट विल हैपन, क्या होगा इसके कारण, क्या लग रहा है आपको, ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे, क्यों, विल दे इंटरलॉक इन, क्यों इंटरलॉक क्यों नहीं होंगे, अच्छा ये ऐसे नहीं बनाया, चलो ठीक है, अच्छा मतलब आप इतने ध्यान से देख रहे हो कि मैम ने ऐसे सीधा नहीं बनाया हुआ, चलो अब देखो, अब इंटरलॉक हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, दैट मीन्स दे बोथ फिट इन ईच अदर, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करने की कोशिश करूंगी, एक्चुअली ये तो उसके बीच में क्या हो गया है, इंटरलॉक हो गया। अब मुझे पहले इसको इन इंटरलॉकिंग से क्या करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा, तभी मैं उसको स्लाइड कर सकती हूँ। पहले मैं इनको इन इंटरलॉकिंग से क्या करना पड़ेगा, मुझे इन इंटरलॉकिंग से इसको बाहर लाना पड़ेगा, फिर मैं उसको क्या कर सकती हूँ, उस बॉडी के ऊपर स्लाइड करवा सकती हूँ। तो दैट मीन्स डबल फोर्स लग गई ना, मेरी तो डबल फोर्स यहाँ पे लग गई, पहले उसको मैं बाहर निकालूं फिर मैं उसको स्लाइड करवाऊं, राइट। सो दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर हैविंग अ रेगुलर सरफेस, ठीक है, इररेगुलर सरफेस, स्मूथ और irregular surface, not regular, smooth or irregular surface, when you are having, what will happen, it will cause the interlocking of the objects. तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। इन इंटरलॉकिंग के कारण कौन सी फोर्स अराइज होती है, अब फ्रिक्शनल फोर्स कह रही है कि मैंने तो इंटरलॉकिंग नहीं तोड़ने देनी, राइट। The frictional force is saying that I don't want to break this interlocking. But हम क्या कह रहे हैं कि मैंने तो स्लाइड करवाना है ऑब्जेक्ट को, I have to move the object, तो मुझे इस इंटरलॉकिंग से बाहर लाना पड़ेगा, okay? So it is due to the irregularities that are present on the surfaces. It give rise to interlocking of the objects, due to which the frictional force it comes into play. ठीक है, तो उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आती है और it opposes the motion of the object. So you can also see whenever there is frictional force we have to apply more force over the object. देख सकते हो ना आप, can you see, जब फ्रिक्शनल फोर्स प्ले करती है तो हमें जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक कार है, सपोज टॉय कार ले लो आप, टॉय कार को बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे चलाओगे
तो वो इजीली चल पड़ेगी, ठीक है, फास्ट भी चलेगी, इजीली मूव करेगी। बट यही आप उसको इरेगुलरिटीज पे लेके जाओ, ठीक है, स्मूथ सरफेस ना हो, इरेगुलर हो, ऊपर नीचे वाली सरफेस हो, ठीक है, तो उसके ऊपर वो इजीली नहीं ट्रेवल करेगी। ओके, इट विल नॉट बी एबल टू मूव सो स्मूथली। सो दैट मीन्स स्मूथ surfaces they offer less friction. Smooth surfaces they offer less friction, and rough surfaces, irregular or rough surfaces, they offer more friction. तो irregular surfaces आपको ज्यादा friction क्यों provide करती हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है? Irregularities that leads to the interlocking of the object, and we have to apply more force over the object in order to break that interlock. ठीक है, so this is the cause of friction. Okay, तो जब मैंने लिखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर इन कांटेक्ट, तो दैट मींस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसी फोर्स है? हम पढ़ के आए थे ना जब हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस की थी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने पढ़ी थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, तो जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होगी ये तभी अपना प्ले करेगी। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट में कैसे एक्ट करेगी बेटा? तो एयर तो है ना, एयर के साथ तो वो कॉन्टैक्ट में है, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। एयर फ्रिक्शन बेसिकली देखो आपका एरोप्लेन है वो उस पॉइंट पे एयर के साथ तो कांटेक्ट में है ना, एयर तो उसकी ऑल अराउंड है, तो एक तरह से कांटेक्ट ही है उसका, उसके आसपास है, ठीक है। इन इरेगुलरिटीज को यू कैन आल्सो कॉल देम एज ग्रूव्स, रिजेस, हिल्स एंड वैलीज, ठीक है, आप इनको इरेगुलरिटीज कह सकते हो, हिल्स, ग्रूव्स, रिजेस, ठीक है, वैलीज, तो एनीथिंग यू कैन से। शू में होते हैं ग्रूव्स, ठीक है, टायर्स में भी होते हैं ग्रूव्स, आपने देखा टायर्स के बाद छोटे छोटे रबर के ऐसे करके लगे होते हैं, लाइक दिस, देखा है आपने, ठीक है, तो दैट आर एक्चुअली ग्रूव्स, दैट आल्सो इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, ठीक है, हो गया क्लियर ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट राइट डाउन कंडीशंस फॉर द रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन और कंडीशंस फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स टू एक्ट। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, हाँ जी, क्या क्या चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेगी फ्रिक्शनल फोर्स को? इट नीड्स अ रफ सरफेस, और यू कैन से नेचर ऑफ सरफेस, अभी हम पढ़ के आए हैं नेचर ऑफ सरफेस, तो अगर स्मूथ सरफेस है तो वो कम फ्रिक्शन ऑफर करेगी, अगर रफ सरफेस है तो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगी। हाँ, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और अच्छा, अगर मैं एक टॉय कार ले लूं और उसको मैं मूव करवाना चाहती हूँ, और अगर मैं एक सिंपल कार ले लूं और मैं उसको मूव करवाना चाहती हूँ, ठीक है, यूजिंग हैंड, टॉय कार को भी मैं हैंड से मूव करवाना चाहती हूँ, जो आपकी नॉर्मल कार है उसको भी मैं मूव करवाना चाहती हूँ यूजिंग हैंड, कौन इजीली आप मूव करवा सकते हो? क्यों? टॉय कार का वेट कम है, मास कम है, ठीक है, so that means the frictional force it also acts on the weight of object, जिसका जितना वेट ज्यादा होगा उतनी, हाँ जी, कैसे रिलेटेड है वेट एंड फ्रिक्शन? लेस वेट लेस फ्रिक्शन, मोर वेट मोर फ्रिक्शन, ठीक है, टॉय कार का वेट कम है तो इसलिए कम फ्रिक्शन लग रही है,
सिंपल कार का वेट ज्यादा है तो अगर मैं उसको मूव करवाने की कोशिश करूंगी तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी. ओके, एंड अबाउट द नेचर ऑफ द सरफेस, स्मूथ will offer less friction and the rough surface will offer more friction. ठीक है बेटा, क्लियर? Now write down the next heading. So these are the factors affecting the frictional force. Now next heading is types of friction. Next is types of friction. तो फ्रिक्शन जो है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, अबाउट द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स, की चीजें जो है वो कैसे मूव करती हैं. सो इट इज क्लासिफाइड एज स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड ठीक है जी. So based on the motion of the object, your frictional force is classified as static friction, sliding friction and rolling friction. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज यू आर हैविंग एन अलमीरा इन योर होम, ठीक है, आयरन की अलमीरा है या स्टील की अलमीरा है आपके घर में, आपने उसको मूव करवाना है, यू वांट टू पुल इट, ठीक है. अब जब अलमीरा रेस्ट पे है, अलमीरा रेस्ट पे है, मैं उसको पुल करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राई टू पुल इट, तो उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. होता है, ऐसे ही होता है ना, राइट, ऐसे ही होता है ना, जब चीजें रेस्ट में है, when they are not actually moving and when you are applying some force over it to move them, at that point you have to apply very high force to set them in motion, ताकि वो मूव करना शुरू करें. ठीक है, जिस पॉइंट पे मैं उस अलमीरा के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो मूव हो सके, रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ सके, वो कौन सी टाइप का फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक. दैट ऑलवेज एक्ट ऑन द थिंग्स दैट आर एट रेस्ट. जो चीजें हमेशा रेस्ट पे हैं उनके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज एक्चुअली द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, the things that are at rest, the friction that acts on them, that comes under the category of static friction. समझ लो, मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, लिखवा देंगे. स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब आपने जब फोर्स ओवरकम कर ली, स्टैटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स आपने ओवरकम कर ली, अब ठीक है, अब आपकी अलमीरा जो है अब वो मूव करना शुरू हो गई, थोड़े थोड़े मूवमेंट होना शुरू हो गया, उसका मोशन होना शुरू हो गया. नाउ इट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस. ग्राउंड के ऊपर आप स्लाइड करेगी ना, जैसे आप उसको पुश करना शुरू करोगे तो वो क्या करेगी, जो आपकी ग्राउंड है उसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर जाएगी. उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा ग्राउंड टू दी अलमीरा, दैट इज एक्चुअली दी. समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है, अब थर्ड केस में ले लेते हैं. सपोज मैंने अलमीरा के नीचे व्हील्स लगा दिए, ठीक है, सपोज मैंने अलमीरा के नीचे क्या कर दिया है, व्हील्स लगा दिए. अब व्हील्स के साथ तो दैट इज वेरी इजी टू मूव, बहुत इजीली मूव कर जाएगी ना. तो व्हील्स क्या करेंगे, दैट विल बेसिकली हेल्प इन द रोलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट के जो व्हील्स हैं दैट विल रोल एंड दैट विल मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव वेरी क्विकली. ठीक है, तो जब आपने व्हील्स अप्लाई कर दिया और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो उस पॉइंट पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है? एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज बिटवीन दी व्हील्स एंड दी ग्राउंड.
ठीक है, अब अलमीरा के बीच में नहीं होगा, जो व्हील्स हैं और जो ग्राउंड है, अब उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपने मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है। थिंक फॉर अ मिनट, सारे सोचो 1 मिनट के लिए और मुझे आंसर दो। आउट ऑफ दीज 3 फोर्सेस, चलो बस ये बताना है कौन सा कम किसका होगा, सबसे कम स्टार्टिंग का, सबसे कम स्टैटिक, रोलिंग सबसे कम रोलिंग का ही होगा, क्योंकि बहुत कम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांटेक्ट में होगी। स्टैटिक में सबसे ज्यादा आपको मोशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब स्लाइड कर रहे हो, थिंक अबाउट द सिचुएशन कि आप एक अलमीरा को सच में खींच रहे हो, ठीक है, जब तक आप उस सिचुएशन को फील नहीं करोगे आपको ये मैग्नीट्यूड समझ नहीं आएगा। मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का पूछा है, ठीक है, जब आप एक अलमीरा को खींच रहे हो, देखो उसको रेस्ट से खींचने में कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर जब वो मोशन में सेट हो जाएगी तभी भी आपको फोर्स अप्लाना पड़ेगा। बट व्हेन इट इज हैविंग व्हील्स तो फिर तो वो इजीली मूव कर जाएगी। तो यानी कि जब व्हील्स है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, ठीक है, राइट, क्यों, क्योंकि हमारी फोर्स ही कम लग रही है उसके ऊपर, राइट।